Hello friends, welcome to Ansarkari and we are taking up another section of important developments and news items and that what works best for understanding and create you can do meaningful and also uh, bureaucratic services that Union Public Service Commission. So the goal is to make sure you have a notebook side by side, make sure that you are making your own notes, make sure that you are ready to brainstorm, make sure that you are carrying an atlas also side by side, make sure that you are putting efforts to stand so you can get the best. So starting today, please do not forget to like, share and subscribe our channel and also please get back kind of courses for the examination that is UPSC. So there are various programs the way shown here. We also work on the same lines but in different way and our goal is to reach to those who cannot reach to these places. So working on these lines, let's and understand the key words starting from. This is a very important theme. Yes, we agree. Our heritage is India's heritage. What is written here? I'm once assured golden age of India. So golden age is a very subjective term. We cannot say that any one part of India, any one period of India can be said as golden age. But I give you a question to ask. That in ancient times, do you think which part of the history is called golden age? क्या गुप्ता पीरियड golden age different है? Book and literature का golden age different है? Religious रिफॉर्म्स का कोई गोल्डन एज हो सकता है क्या? वुमेन एम्पावरमेंट का कोई गोल्डन एज हो सकता है क्या? साइंटिफिक हेरिटेज के क्रिएशन का भी कोई गोल्डन एज हो सकता है क्या? जस्ट थिंक एंड जस्ट वर्क ऑन दोज लाइंस. So rich heritage is obviously proud. It is new India has a heritage always a development. तो heritage को development से link करना है. Heritage को constructively link करना है to the modern times to success and that is also it is very important. तो इसके examples हैं यहाँ पर. Examples are shown here that how you can link heritage with the golden period of the past. Example हो रहा है केदारनाथ temple complex, Vishwanath Dham. Recently you are going to think about Mahakal Ujjain Mahakal corridor. We are just knowing about it. उसके बाद then you can say Shakti Peeth Ambaji Tirth Dham. Kalika Mata Temple at Pavagadh. So Champaner Pavagadh is a World Heritage Site. Baba Baidyanath Dham at Devghar. इनोग्रेशन ऑफ जगत गुरु संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर देव पुणे. पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुकाराम महाराज की जो टीचिंग्स हैं वो हमें देखनी है. इंटरनेशनल योगा डे, ग्लोबल आयुष समिट, वर्ल्ड WHO ग्लोबल केयर सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. देन उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के लिए जो हमने बनाया. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का डेवलपमेंट एक पंच तीर्थ के तौर पे जो अभी हमने बात भी की थी पहले दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन पराक्रम दिवस. नेताजी सुभाष we are celebrating as Parakram Divas. So Biplavi Bharat Gallery at Kolkata's Victory Memorial and new museum at Red Fort. And definitely they are talking about Mahakal Lok also. That also we will talk about in the coming newspaper. So this is Sri Mahakal Lok Ujjain dedication by the Prime Minister, dedication to the nation, and it reflects the glory and the heritage of the past. See, this is how it is. You can have a look at the kind of architecture it is showing. It will be from the past, it will be from the glorious, uh, you know, ancient times. And this is how look at it. Uh, the visual may be taking 1 second to come up clearly on the screen, so be patient. It is. See, this is how they are rejuvenating it. So do you think without bureaucratic services, without IS or IPS officers, a very important critical role, it can be done, or it is not possible? So there is going to be visitors plaza, there is going to be well equipped security surveillance, there is going to be e-rickshaw parking and charging, shops are there, there is a ramped parking with 400 cars. This is how of infrastructure, and the key point here is क्या ये self sustainable है? Biodegradable waste will be created, will it be able to get recycled, and will it be able to utilize the way it should be? So this is one of the key points you should think about that. So the first important news item is there that Samajwadi, he no more, he has been a key person, he has been a key soldier, and he was a person who created a social justice a platform or a fulcrum. एंड वी विल डिस्कस कि उन्होंने क्या चेंज किया और उसके बाद में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुए इस पर भी हम जोर डाल पाएंगे, इस पर हम समझ पाएंगे. दैट इज वेरी स्टडीज पेपर वन सोसाइटी एंड ऑल्सो सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ essay we can understand. So he as a defense minister, he believed that China is a bigger enemy. Then he went to say that election, that means campaign,
है, then you take care how you will carry out the expenditure and the हैं, without them you cannot ever going to win any of the elections. Winning election is not a ball game of a small time person. It is a very very important and a crucial exercise in democracy. So that is what he reflected the ideas of socialist leaders like, and that is he was believed to be following social justice platform. क्या किया उन्होंने, कितना किया, we will try to see that. So there was one ad on the front page and then again there is an ad about पर था. अब हिंदू हिंदू बात खत्म हो गया तो ये आ गया है इंडियन एक्सप्रेस पर. लेकिन क्या हिंदू और क्या इंडियन एक्सप्रेस, समय की बात है, अखबार चलते रहेंगे लेकिन सिलेक्शन के तरीके के लिए कोई शॉर्टकट नहीं. स्ट्रक्चर्ड और एक स्मार्ट और एक सेल्फ ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए जो आपको खुद ही करने से पता लग जाता है कि सक्सेस की तरफ आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. तो सेवा भारती अवार्ड दिए गए. तो सेवा भारती अवार्ड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बाय सेवा भूषण सम्मान 2022. सो उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह and Union Minister for Civil Aviation at the state level, VK Singh sir, they both had given National Award for Social Work and Social Transformation, and it has been given to Mumbai headquartered समता फाउंडेशन ने एजुकेशन और हेल्थ के उसमें काम किया. तो पेपर 3 जनरल स्टडीज, पेपर 3 इकोनॉमिक्स, जहां पर पोर्शन है, जहां पर सोशल जस्टिस, जहां पर इक्वालिटी, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात वहां इसकी की गई. मूविंग फर्दर, अगर मैं बात करूं स्लम फेस्टिवल, तो स्लम फेस्टिवल अपने आप में एक एग्जाम्पल है. आप यू नो आपने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया और उस फेस्टिवल के अंदर आपने जो है, जो बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, जो बच्चे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं है, उनको आगे बढ़ने का एक मौका दिया गया. इट हैज बीन डन बाय दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड एंड देन these children will be playing, they will be doing drawing and the music and so on, and that's how they will be taking awards back. So this is a unique example. As a district collector tomorrow, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप भी ऐसा कर सकते हैं, सोसाइटी के साथ मिलकर आप ऐसा सोच सकते हैं. सिर्फ आईएएस ही नहीं, बाकी भी ऐसा कर सकते हैं. सो नेशनल गोइंग टू क्रिएट अ समिट, दैट इज समिट फॉर हेल्थ केयर. एग्जाम्पल सिविल सोसाइटी का ये एक सेक्टर हो गया, हेल्थ एक सेक्टर हो गया. तो इसमें देखिए आप, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर कमलेश कुमार पंत, आईएएस, इज चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी पीपीए, Department of Pharmaceuticals and Ministry of Chemicals and Fertilizers. Similarly, Mr. Nilambuj Saran, he is also economic advisor to the Ministry of Health and Family Welfare. और सबसे पहले जो है मिस रोली सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस तरीके से आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन. डॉक्टर अरविंद सोयन, कमांडर नवनीत बाली, डॉक्टर आशीष चौधरी, नीलिमा द्विवेदी, ये सारे लोग जो है, ये जो है आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जो स्ट्रक्चर हमारी हेल्थ और एक्सेसिबिलिटी की बात करता है. 11 अक्टूबर वॉज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे. इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे. तो अगर ये आपको टॉपिक बोला जाता है कस्टम्स आर चेंजिंग, सो आर द सर्कमस्टेंसेस, सन एंड डॉटर आर इक्वल, लेट्स गेट इट राइट. कस्टम्स आर चेंजिंग, सो आर द सर्कमस्टेंसेस. तो क्या अर्थ हुआ इसका? कस्टम्स आर चेंजिंग, वर्ल्ड में ही कस्टम चेंज हो रहे हैं. वेरी वेरी डायनेमिक लेबोरेटरी, इंडिया इज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी. लेकिन मैं ये कोट आपको फिर से बोलता हूँ, गेट इट राइट. इसमें आपको, आप इसमें आज के समय में सोच के क्या कर सकते और फिर बताइएगा. Most important thing for prelims is peace is very very important act to prevent sex determination conception, or you can say before or after conception, and it is a punishable offense, and reformer will be given aware, and district magistrates they are very much in it. ये आपके, मैंने जैसे आपसे कहा था, साइफाई में जन्म हुआ, इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी, 1960 elected MLA for the first time on Sahib Social Party Kranti Dal of Charan Singh. Chief Minister for the first time for Samajwadi Party, enters Lok Sabha from Manpuri, becomes Defence Minister, becomes Lok Sabha member again from Sambhal UP, and 2019 becomes MP, 7th in the last time. तो ये एक सीक्वेंस हो गया. You can understand how the politics of heartland, politics of you know यूपी दैट डिसाइड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ से आएगा. तो उसमें एक लीडर थे जिनके दोनों तरफ सपोर्ट था, जिसका दोनों तरफ रोल था, एंड ही वाज नोन फॉर हिज लाइवली एंड स्पिरिटेड फॉरम. तो पॉइंट इज दैट कि इससे हमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का लिबरलाइजेशन पीरियड से पहले एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन दैट इज आफ्टर 1990s का आपको पता लगता है कि हाउ इट इज अपॉन. Idea is not to know about Mulayam sir was doing. It is about Mulayam Singh
So as a public officer, as a public representative, difference he made. What he made to the and everything. Form a formidable Muslim Yadav vote bank, especially after the Babri Masjid demolition of 1992. And he was known for promoting progressive policies, but not in terms of society and social dynamics. In the word here, what I'm using is in terms of say for example women empowerment या patriarchal society या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्या रोल है. जैसा उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदी को ही रखेंगे, हम आईटी को इतना वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने किसान बेल्ट, पेजेंट बेल्ट एंड द रूरल बेल्ट उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायद ऐसा ली है पोजीशन, बट देन दैट वाज नॉट conducive enough. That is why BJP came to power and BJP has been able to consolidate in so many areas. So the enmity with the BJP was not bitter, and because he traveled with the BJP in growth when Congress and 1980s में, तब जो है उन्होंने एक नई पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की बात की. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है मेदांता हॉस्पिटल में अमित शाह ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया, और जो है दिस डेवलपमेंट इज डेफिनेटली काइंड ऑफ इंडिकेशन कि पॉलिटिक्स पहले किस तरीके से हो रही थी, और इंडिकेशन ये है कि भाई कैसे एक ग्रास रूट लीडर राइज होता है, कैसे नए लीडर्स बनते हैं. वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हिम. हम अगर उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करें तो आप देखोगे कि मुलायम सिंह यादव ने एक सोशल कोएलिशन फॉर्म किए, नॉन प्रिविलेज्ड कास्ट को उन्होंने ऊपर उठाया. राम मनोहर लोहिया के आइडियाज को उन्होंने प्रमोट किया. राम मनोहर कौन सी किताबें लिखी, वो कहाँ गए थे, और वो राम कैसे इंस्पायर होकर ही स्टार्टेड विद द पेजेंट्स, ही डिमांडेड 60% रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और लैंडलेस बैकवर्ड क्लास, जैसे मैंने कहा ओबीसी, मुस्लिम्स, इन सब के लिए काम किया. उन्होंने वेरियस नॉन डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटी जैसे धोबी, लोहार, निषाद, इनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको व्हाट आई शुड से एक तरीके से पुश दिया. His style was very very mild, but still he was criticized for firing on the car sevaks, and also he was infamous for the गेस्ट हाउस कांड जिसके अंदर मायावती वाज अटैक्ड बाय द एसपी एक्टिविस्ट. तो कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से एक बहुत ही ब्रॉड विशाल ऑरा जो एक लीडर चाहता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके पास उनके ऊपर एलिगेशंस लगे लेकिन वो भी क्लियर हो गए. तो पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट के लिए मुलायम सिंह यादव जी जाने जाएंगे, लेकिन आप ये कह लीजिए कि भाई आपने तरफ से कोशिश की कि बैकवर्ड आगे लेके आए. द कोट आई एम रीडिंग हियर इज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इविल अनचेक्ड ग्रोज. अगर evil आप अनचेक्ड रखेंगे, यानी उसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ग्रो करता चला जाएगा. इविल टॉलरेटेड पॉइजन्स द होल सिस्टम. अगर इविल को आप टॉलरेट करेंगे तो सारे के सारे सिस्टम को पॉइजन कर देगा. बात समझ. इविल अनचेक्ड ग्रोज, इविल टॉलरेटेड पॉइजन्स द होल सिस्टम. तो दोनों चीजें ही गलत है. अनचेक्ड इविल इन एनी फॉर्म. अब हम बात करते हैं हेट स्पीच की. तो हेट स्पीच की यदि हमें रिसेंट एग्जांपल, देयर वाज अ वीडियो व्हिच वाज टॉकिंग अबाउट दैट अ पुलिसमैन वाज फ्लॉगिंग यू नो a person in public, and secondly a member of parliament is talking about boycotting a certain community. दोनों को नहीं तो evil इसी content checked. तो evil है ये. inflammatory speeches, exhortations to violence कि भाई मार डालो, काट डालो, कुछ नहीं होगा, बचेगा नहीं कोई. तो इससे जो है आप समझ लीजिए डेमोक्रेसी का, इससे जो है आप समझ लीजिए कि जो है मतलब मेरा कहने का मतलब है कि come to another element, but it is not directly related with your writing, but as an administrator, as a future officer, and as anywhere in the world, you must know. एक होती है बिंग वॉचिंग. अब मूड किया, आप शुरू हो गए कचर परत करते हुए और आपने 8 एपिसोड 10 एपिसोड देख डाले, बात खत्म. एक होता है अपॉइंटमेंट वॉचिंग. तो पढ़ाई में चाहिए बिंग पढ़ाई. पढ़ाई में तो हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमारे उसमें हम अपॉइंटमेंट वॉचिंग के हिसाब से पढ़ाई नहीं होगी. हमारे में बिंग के हिसाब से पढ़ाई होती है, अपॉइंटमेंट के हिसाब से होगी. सो वी टर्न द टेबल्स अराउंड. दैट इज व्हाई वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस. हमें कीजिए और आगे बढ़िए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. अगर बात करें तो पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट फलक्रम है. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है. पाकिस्तान इज अ कॉरिडोर टू सेंट्रल एशिया, जिससे हुआ है, और अफगानिस्तान इज अ कंट्री वेयर तालिबान इज रूलिंग. तो कैसे देखा जाए, नॉन नेटो मेजर एलाई भी है. उसको मतलब एक जो टैग दिया गया है कि जो टैग मतलब कि उसको एक टैग, उसको एक
आगे बढ़ने का, आई मीन टू से एक सपोर्ट देता है. इट इज ए मेजर नॉन नाटो एलाई. नाटो वी नो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. सो द क्वेश्चन हियर इज कि पाकिस्तान यदि आर्मी चलाती है, पाकिस्तान में आर्मी डोमिनेट करती है, पाकिस्तान की पावर आ सके, सिविलियन गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करती है, बट देन इट फाउंड दैट इट इज टू मच टू हैंडल. और वो जिस तरीके की हरकतें हैं उस तरीके से उन्होंने जो है अब पाकिस्तान में अब इमरान खान जी की पावर नहीं रही. लेकिन वो अगेन फिर बोलते हैं, आर्मी के खिलाफ ही बोलते हैं. वो ये भी बोलते हैं गवर्नमेंट आई है, इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय द अमेरिकन फोर्सेस. अमेरिका अब जमाना वो चेंज हो रहा है. पाकिस्तान इट्स इंटरनेशनल आइसोलेशन में जा रहा है. जब तक वो टेररिज्म को स्टॉप नहीं करता है, जब तक उसको फाइनेंसिंग स्टॉप नहीं करता, नो बडी इज गोइंग टू बिलीव इट, नो बडी गोइंग टू सपोर्ट इट. इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 3 मिलियन 3.5 ट्रिलियन कहना चाहिए हमें. पाकिस्तान के पॉलिटिकल लिवरेजेस भी कम हो गए हैं, वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इन सब के साथ इंडिया का राइज हुआ है. और यूएस का एक नया एंगेजमेंट भी हो रहा है. तो ऐसे में अगर पाकिस्तान बहुत मच, क्योंकि पाकिस्तान को सारा सपोर्ट उससे नहीं मिल सकता यूएस से, और यूएस चाहेगा कि पाकिस्तान को चाइना के जो जो ग्रुप है उससे थोड़ा सा बाहर लेके आए. सो दैट हाउ इज टू बी सीन. दैट इज हाउ, रादर देन राइटिंग द मंडेन थिंग्स, आपको इसको समझना है कि इस वन अगर मैं बात करूं कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर की, तो वी आर रनिंग ए सी है उसको फॉर श्योर उसको कुछ स्माइल ऑन द फेस. टू हैव अ लुक. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डू कॉन्टैक्ट बैक, डू राइट बैक, डू अंडरस्टैंड इट. College period you can say so. Then I was then साकेत में जो पीवीआर है वो स्टार्ट हुआ था, मल्टीप्लेक्स जिसको हम कहते हैं पीवीआर, एंड आई हैव विजिटेड दैट. आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गोइंग ओवर देयर. जाना बहुत हॉरिबल होता था, जाना बहुत ना, कुछ बसें होती थी लेकिन गए थे, बिल्कुल गए हैं पीवीआर साकेत. लेकिन अब वो बात नहीं रही. अब वो पीवीआर साकेत या पीवीआर कहीं भी आप जाकर, टिकट सिर्फ महंगे नहीं है, महंगा होता चला गया. मास कल्चर मल्टीप्लेक्स तक एक तरीके से पहुंच ही नहीं पाया, पहुंचा भी है तो बहुत कॉस्टली. सिंगल स्क्रीन जो है वो दिखाता है. विक्रम वेधा जैसे मूवी अभी उसको बहुत बहुत फेमस हुई है वो. उसका स्टाइल पूरा साउथ इंडिया वाला है, उसका मसाला साउथ इंडिया वाला है. ब्रह्मास्त्र भी इसीलिए थोड़ी फेमस यहाँ पर उठ रहा है कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट के मूवीज नहीं चल सकती, विदाउट कॉन्टेक्स्ट के मास कल्चर नहीं चल सकता. इसीलिए कमाल की बात यह है कि आप अगर पुरानी मूवीज देखो तो उनका एक कॉन्टेक्स्ट होता था, वो सोशल मैसेजिंग करती थी. आज जो है सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सोसाइटी में लाइफस्टाइल डिजीज दुनिया भर की हैं. आप जो है कि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ऐसी मूवी कैसे देख पाएंगे. लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं होगा, मन रे तू काहे ना धीर धरे, या आपको पता ही नहीं होगा भानु अथैया ने क्या किया. आज ही गूगल करना, भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम ड्रेस ऐसी क्या बनाई कि रिवोल्यूशन लेके आ गए. भानु अथैया लेके आई थी रिवोल्यूशन, मुझे ये कहना चाहिए. उनको ऑस्कर से भी जुड़ी हुई है वो. तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ. तो सिंगल स्क्रीन स्टाइल फिल्म है वो, क्योंकि उसके अंदर पूरी मार काट मार धाड़ है. अब ओटीटी भी आ गया, तो अब इतना इन्फॉर्मेशन तो फीड हो रहा है, इतना सारे सीरियल्स भी चल रहे हैं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन चीजें भी बहुत नॉर्मल है. तो इसलिए ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, सिंप्लिसिटी गायब हो गई है. बिना उसके ना तो एग्जाम निकलेगा, बिना उसके ना आप अलग हो पाओगे. तो भीड़ से अलग होना है तो पेपर को समझिए, भीड़ से अलग होना है तो ठीक से काम कीजिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेट स्पीचेस आर सलिंग नेशंस एटमॉस्फेयर. सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई हेट स्पीचेस जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है. मैं आपसे कह रहा हूं, आप सबसे, हेट स्पीच एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है. कमेंट कीजिए कैसे और उसका क्या सॉल्यूशन है. आप सोचिए, लिखिए और बताइए. हेट स्पीच के कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेट स्पीच को टोटली अगेंस्ट हैं. प्लीज डू लुक इनटू इट एंड गेट बैक टू मी. अगेन कमिंग टू अ पॉइंट, पीटी एंगल से अगर मैं कहूं तो आईएसपीए यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन मुझे कहना चाहिए. तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डीजी का कहना है कि भाई इंश्योरेंस जो स्पेस एक्टिविटीज के लिए है वो आना चाहिए, क्योंकि धरती जल आकाश सबके लिए इंश्योरेंस चाहिए. अगर स्पेस एक्टिविटीज के लिए इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली है तो एक्सपेरिमेंट कैसे हो पाएगा. इंश्योरेंस तो होना पड़ेगा, बिकॉज इसरो तो पे नहीं करता, क्योंकि इसरो तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है, उसको तो गवर्नमेंट संभाल लेगा. लेकिन प्राइवेट प्लेयर के लिए क्या होगा, उसके लिए तो इंश्योरेंस चाहिए. और दूसरा लीनियंट बिल चाहिए. लीनियंट बिल का मतलब है कि भाई जो प्रीवियस बिल आया था 2017 में, इट वाज सेइंग दैट कि जो है जो देयर विल बी हार्श इम्प्रिजनमेंट एंड डिस इंसेंटिव फॉर द इंडस्ट्री. पहले जो था कि प्राइवेट सेक्टर अगर कोई गलती करेंगे तो जिस प्रकार की उसमें सिचुएशन थी कि अगर कोई भी एक्टिविटी बिना लाइसेंस के वो करने जा रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 3 साल की सजा. बट देन
क्रिमिनल चार्जेस भी नहीं होने चाहिए, लीनियंसी भी होनी चाहिए, और मैकेनिज्म्स क्रिएट करने चाहिए जिससे उनको इनकरेज किया जा सके। एक कॉर्पस फंड भी क्रिएट किया जा सकता है डैमेजेस के लिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके अंदर एक सपोर्ट करे प्राइवेट कंपनीज के लिए। दैट इज हाउ इट कैन वर्क अप। यू कैन प्लीज लुक मोर इनटू आईएसपीए, बिकॉज ये मेंस के एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव आंसर्स में बिल्कुल आ सकता है। सेकेंडली, इंडिया हैवी रॉकेट जैसे जीएसएलवी MK3, वो 36 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वेन वन वेब ग्लोबल कम्युनिकेशंस की सैटेलाइट है, उसका कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन जैसे आपका ग्लॉसनास है, जैसे आपका नाविक है, वैसे ही कॉन्स्टलेशन है। Now this is another very unique example with respect to India कि एक क्रोकोडाइल की बात करते हैं। क्रोकोडाइल जो है वो टेम्पल के प्रांगण में रहता है। टेम्पल का नाम है आपके अनंत पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एट कुंबला एंड कासरगोड। कासरगोड आपको पता होना चाहिए कहाँ है। कासरगोड केरला में है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा क्या उगता है? कैशू नट्स की कहीं वो वर्ल्ड की फैक्ट्री तो नहीं है? डू चेक आउट दीज थिंग्स मोमेंट आई से दैट। तो बात मैं क्रोकोडाइल की कर रहा हूँ, तो क्रोकोडाइल साहब जो है वो वहां पर थे, उसमें उसके पॉन्ड में थे, लेकिन पॉन्ड में रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी जो है मछलियों के साथ भी रहे। कहा जाता है कि उन्होंने नॉनवेज बहुत कम नॉनवेज खाया ही नहीं। मतलब वो मतलब अब क्रोकोडाइल जी हैं तो नॉनवेज तो खाएंगे ही, बट द पॉइंट इज दैट कि लोग जो उनको डालते थे खाने को, चावल, इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सो ऑन, वो उसको खाते थे। तो कहा जाता है कि ही नेवर अटैक्ड एनी डिवोटी, ही नेवर टर्न वायलेंट, ही वाज देयर सिंस 1940s, बिकॉज वो 70 ईयर्स से ज्यादा के थे। एंड देन सेकेंडली, द टेम्पल इज हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी, उसको भी उन्होंने रक्षा की। So that is why it is given द स्टेटस ऑफ अ सेंट। तो ये इंडिया में ही हो सकता है। ये जहां पर आपके पास आदमी के लिए टाइम नहीं है, वहां आप क्रोकोडाइल के लिए पूरे के पूरे आप जो है रिचुअल्स और पूरे के पूरे आप जो है चीजें करते हैं। तो दैट इज एन अमेजिंग, वर्सेटाइल एंड सस्टेनेबल वे, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप एंड ऑल्सो ऑफ इकोसिस्टम। मूविंग फर्दर to take on the key elements, because you have to understand that this is to be seen. Economics is very important perspective as far as understanding, not only for the examination but otherwise also. So international trade in rupee चाहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेड इन रूपी के लिए आप दो कंट्री सोचो जो अभी बिल्कुल रेडी है, दे वुड लाइक टू हैव ट्रेड इन रूपी। यस, यू आर राइट, वन इज रशिया, other example you can give Iran. But the big banks, apart from UCO Bank and Yes Bank, they have not been ready to do their trade in international trade in rupee. Why? Because maximum trade they are doing internationally is in dollar, and they have got great business operations with the US. रशिया से उन्हें 2% ही ट्रेड मिलेगा, तो इसके लिए वो इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है। दे बिलीव दैट वी विल बी पुट अंडर सैंक्शन, अगर हमें सैंक्शन में डाला जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाउ थिंग्स लाइक दिस मस्ट बी हैंडल्ड? व्हाट कैन बी सोल्यूशन फॉर सच थिंग्स? प्लीज डू थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक। सिमिलरली वीएलसी, किसको नहीं मालूम वीएलसी वीडियो प्लेयर? वीएलसी वीडियो प्लेयर को अभी जो है बैन कर दिएगा, उस साइट को बैन कर दिएगा, बिकॉज इट इज ट्रांसफरिंग डेटा इन होस्टाइल कंट्री, दैट मीन्स चाइना ओवर हियर। लेकिन वीएलसी ओरिजिनली इज फ्रॉम, जैसे वीडियो लैंड बोलते हैं, इट इज नॉट ए चाइना बेस्ड एंटिटी, इट इज हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस, बट स्टिल government of India has banned it under the what I should say, under the act by which section 69A, I should say section 69A of the Information Technology Act, उसको ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया है, because it is promoting and supporting those hackers or those cyber attackers, those who are actually hurting our interests, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मुलायम सिंह यादव जी की, अगेन मुलायम सिंह यादव एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, एज एन इंस्टीट्यूशन, तो असर्शन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज, पहली बात। ओके, तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि that he used to say that the Sanyukt Socialist Party has taken this resolve, OBC should get 60% of all. ओके, उन्होंने गांठ बांध दी थी कि पिछड़े पावेंगे 100 में 60। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावेंगे 100 में 60। 60% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन इज गिवन right now, but they were demanding 60 total. And entry of Dalits in the corridors of power. So now Ram Naresh Yadav became the first non-upper caste CM of UP, and a prominent contender for the job of the Dalit leader Ramdhan, but it was the emergence of Mulayam and his politics social justice that first Dalit get a proper foot.
तो इसीलिए काशीराम जी जो बीएसपी से जुड़े हुए थे और मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने इन चीजों को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने भी कांग्रेस मुक्त यूपी की बात की थी बीजेपी से पहले। बीजेपी आज की बात में करती है हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें कांग्रेस मुक्त बात करे। तो उस समय मुलायम सिंह यादव ने एक सोशल अलायंस को, नया सोशल अलायंस क्रिएट किया, स्लोगन दिया कांग्रेस मुक्त यूपी। तो उन्होंने आज से 25 साल पहले ऐसा बोल चुके थे वो। ही वॉज अमंग द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ मुस्लिम ऑल्सो, एंड टुडे यू कैन से ही प्रमोटेड द पॉलिटिक्स ऑफ डायनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मैन, यानी रैपिड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो कि लीडर थे जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा, प्लीज गूगल कीजिए, एनडी तिवारी एंड लेटर ऑन वीपी सिंह, दीज ऑल लीडर्स के टाइम के अंदर देयर इज रैपिड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। दोनों बातें अलग अलग हैं, criminalization of politics and politicization of crime. Criminalization of politics and politicization of crime. Think about it, work on it, and then if you are not understanding, then we will definitely speak about it. Now let's come to Nobel Prize. The Nobel Prize in Economics is given to three gentlemen, three great sirs, Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond, and Philip H. Dweck. So these three gentlemen, these three sir have been given. The research is on the banks, relationship between bank and the financial crisis. तो बात क्या है? बात ये है कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है उसमें बैंक का कोई रोल है क्या, या बैंक की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बैंकिंग सेक्टर डूबता है? दोनों चीजें कैसे जुड़ी हुई है? सो दे वेंट ऑन टू रिसर्च अबाउट द 1929-1930 ग्रेट डिप्रेशन। उन्होंने देखा ग्रेट डिप्रेशन में यूएस प्रोडक्शन वेंट ऑन टू डाउन बाई मोर देन 40%, 25% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई। ऐसा ही 25% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिटेन में मिलेगी, ऐसे ही आपको चिली में मिलेगी, ऐसे ही आपको जर्मनी में मिलेगी, ऐसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। एवरी बैंक कोलैप्स्ड, एंड देन एवरीवेयर बैंक कोलैप्स, पीपल वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड दे वर स्टार्विंग। लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कहाँ हुआ? ऐसा अमीर कंट्रीज में हुआ, रिच कंट्रीज में हुआ। लेकिन लेकिन ऐसा कहा गया, लेकिन अब बाद में जब 1980s में रिसर्च हुई तब पाया गया कि भाई एक्चुअली वे बैंक फेल हुए थे तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो बैंक फेल नहीं हुए, बैंक फेल हुए तो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। अगर बैंक स्ट्रांग रहेंगे, अगर बैंक की लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा करके रिसर्च करके पाया। उन्होंने पाया कि फैक्टर्स हैं जैसे जीडीपी ग्रोथ में कम आ गया, उसके बाद जो है बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं वो कम हो गए, लेकिन फिर भी बैंक के चलने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती हैं। बैंक्रप्सी लीड्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस। विड्रॉल जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आज भी एक लाइन है यहाँ पर कि दैट इफ साइमल्टेनियसली मोर देन ए सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम द बैंक इमीडिएटली एंड एट द सेम टाइम इट विल बी ड्रिवन टू बैंक्रप्सी। तो ऐसा करके 1929-30 में हुआ। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इकोनॉमी जो है रिकवर नहीं हुई और स्टेट फाइनली जो है उन्होंने पावरफुल मेजर्स इंप्लीमेंट किए और बैंक को एडिशनल सपोर्ट किया। दैट इज वाई इट शुड नॉट पैनिक। सो बैंक मस्ट बी इंश्योर्ड। अगर डिपॉजिटर्स का मनी इंडिया में भी ऐसा है कि बैंक्स का जो हमारा बैंक मनी है दैट इज इंश्योर्ड बाय ए बिल, दैट इज वाई देयर इज अ लेस चांस फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। दैट मीन्स इट इज अ क्रिटिकल टूल टुवर्ड्स बिल्डिंग ट्रस्ट एंड प्रिवेंटिंग बैंक रन्स। तो बैंक रन्स नहीं होना चाहिए, otherwise it will be if you are letting a bank fail then there will be more crisis in that sense. That is why you can say that in 2008-2009 crisis also the situation is that bank fail and then only crisis happens, because in a world without banks, अगर बैंक ही नहीं होंगे तो क्या होगा? आप सोचिए, बैंक ही अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा? आप कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेवर्स और इन्वेस्टर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो की फैक्टर्स हैं। सेवर हमेशा चाहते हैं कि उनको एक्सेस रहे किसी भी टाइम पे एटीएम मनी अपने पैसे को 24 घंटे में कभी भी निकाल लें। दैट इज व्हाट ए सेवर वांट। इसको कहते हैं नीड फॉर लिक्विडिटी। और वो चाहते हैं कि जब मर्जी पैसा निकाले जब उन्हें जरूरत हो। अब बोरोवर्स क्या चाहते हैं? बोरोवर्स चाहते हैं दे वांट टू हैव लोन फॉर बिल्डिंग अ रोड, बिल्डिंग एन इंडस्ट्री, बिल्डिंग अ यू नो सोसाइटी एंड सो ऑन। उनको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। अगर उनको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो उनको देने में टाइम भी लगेगा। तो बोरोवर्स कैन नॉट फंक्शन इफ द मनी कैन बी डिमांडेड बैक एट ए शॉर्ट नोटिस। तो इसीलिए सोसाइटी इस चीज को, मिसमैच को जो है रिजॉल्व करती है। बैंक is an important institution which is resolving this mismatch, which is giving liquidity to the savers, and while borrowers are having access to long term financing. इसी को कहते हैं मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आपका पैसा बैंक में, बैंक का पैसा infrastructure, roads, airports, and so on. That is why India has got a large economy, huge number of people. If they are out of poverty under all circumstances, then India is going to win. So maturity, long-term maturity into bank accounts,
शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी भी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एज आई सेड. सो दैट इज व्हाई आई एम अगेन लिंकिंग इट विद कि इंडिया चाइना से क्या सीख सकता है पॉवर्टी एलिवेशन में. चाइना इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एग्जांपल दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम. आज की डेट में इंडिया में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जहां पे 46 रुपीज पर डे के ऊपर जो है लोग, 5.6 करोड़ लोग वो जो 46 रुपीज पर डे के ऊपर जी रहे हैं. एंड जो है मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जो 84 रुपीज पर डे के ऊपर जी रहे हैं. जब आप चाइना की बात करो तो हिस्टोरिकल स्पीड से बिटवीन 1978 एंड 2018 एक ऑसम स्पीड से पॉवर्टी कम हुई. क्या कारण हुआ? चाइना वॉज हैविंग एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम पॉवर्टी अंटिल 1970s. चाइना के अंदर जो है आप कह सकते हो 1950 के अंदर जो है तभी से जो है एक इंटरवेंशन होना शुरू हो गया था सिंस 1950s. इन 1978 उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी पर 1000 बच्चों में कितने डेथ होंगी वो थी आपकी 52, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उस टाइम 66 थी. उस टाइम 66 थी, आज तो ज्यादा होगी होगी. तो इंडिया से आप कंपेयर कीजिए. प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेट जो है वो भी बढ़ता चला गया, 96% हो गया, और सेकेंडरी स्कूल इनरोलमेंट रेट तो 50% था. इंडिया में अभी बढ़ रहे हैं. तो दैट इज वन रीजन. तो बिना हेल्थ के, बिना एजुकेशन के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप भी डेवलप कंट्री नहीं बन सकते. यानी कि चाइना ने मिलियंस ऑफ पीपल को पॉवर्टी से निकाला. उसके रीजंस हैं. उसके रीजंस हैं, द रीजन इज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. यानी कि चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ को किया, ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. एग्रीकल्चर सेक्टर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, पुअर पीपल को डायरेक्टली बेनिफिट किया थ्रू प्रोडक्टिविटी, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट इंसेंटिव्स दिए. उसके बाद लो स्किल्स जॉब को क्रिएट किया, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया. उससे क्या हुआ? द वन हु इज अर्निंग दे आर सेंडिंग बैक मनी होम. एंड दे आर सेंडिंग द बैक मनी होम, वहां पर पैसा आ रहा है. अर्बनाइजेशन के अंदर आप माइग्रेंट्स आ गए और उन्होंने नई नई अपॉर्चुनिटीज ली. उनसे जो है पीछे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अर्बन एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स क्रिएट हुए. इंक्रीमेंटल हुए रिफॉर्म्स चाइना के अंदर. पॉपुलेशन उससे एडजस्ट होती चली गई. यानी कि कैसे हुए? एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और दूसरी तरफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जो है माइक्रो लेवल के ऊपर, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज भी चाइना ने रेडी की. माइक्रो लेवल के ऊपर काम हुआ. जो ज्योग्राफी से डिसएडवांटेज थे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन पुअर हाउस होल्ड्स के ऊपर फोकस किया गया रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन. जैसे हम घर घर बिजली दे रहे हैं, जैसे हम हर कोने तक जा रहे हैं. तो चाइना सक्सेस बेनिफिट फ्रॉम द इफेक्टिव गवर्नेंस, जिसको हम कहेंगे. तो आपको क्या लगता है इंडिया में इफेक्टिव गवर्नेंस है? आपको क्या लगता है इंडिया के अंदर ऐसे स्कीम्स हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे फिर वो स्कीम फॉर एमजी नरेगा हो, लेकिन क्या वो उस तरीके से चेंज कर पाएगी? और एक सेट रखा टारगेटेड पॉवर्टी रिडक्शन का. चाइना का साइज जो है उससे उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स. हमारे पास भी पीआरआई है क्या हम, लेकिन एग्जैक्टली वो कर रहे हैं. लोकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग द लोकल गवर्नमेंट्स टू डू द बेस्ट. क्या इंडिया में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? तो लोकल एक्सपेरिमेंटेशन, लोकल कोहेरेंस, लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन. तो क्या इंडिया के आईएएस आईपीएस एंड आल्सो अदर ऑफिसर्स दे आर आल्सो वर्किंग इन द सेम वे? क्या उनके कुछ टारगेट्स हैं? हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंडोमेंट्स हुए, यानी पैसा लगाया गया खूब. And that is how you can say it also went on to rise in terms of it went on to rise in terms of human development index. That is what I want to say. So this is what we can say for the newspaper in terms of in the Indian Express, which is very very important to understand. अब decade long period तक जो रहे हैं हमारे जी जिनपिंग, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो स्वीपिंग कैंपेन्स लेके आए. ऑफिशियल जो डिसलॉयल थे, करप्ट थे, इनफेक्टिव थे, उसको जो है खत्म कर दिया, अपने एलाइज को वहां डाला. डोमेस्टिक सिक्योरिटी एपरेटस को उन्होंने कंट्रोल किया. पार्लियामेंट और अदर बॉडीज को उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के साथ साथ ब्रीफ किया. मिलिट्री का भी कंट्रोल किया. स्वीपिंग रिफॉर्म्स लेके आए. एंड देन ही इज at the core of the party. He amended the constitution in 2017 and he went on to bring Xi Jinping thought of socialism with the Chinese characteristics, and he has become the supreme leader of the party. And his focus is on government, military, education, poverty, and everything is he is focusing upon. And he abolished the term limits for presidency, and he can rule for life. And the party are pledged to uphold the two establishes that the party speaks for loyalty to him. जैसा करके रेजोल्यूशन एक आया. तो स्टेट मीडिया भी यही बोलती है. मीडिया फ्रीडम भी जो है रिड्यूस हो गई है. इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकमवेंट हो गए हैं. तो एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ जी जिनपिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या ये डेमोक्रेसी है? चाइनीज डेमोक्रेसी इसको कहते हैं. Do you think it is a really way for India also to move way forward? Indo-Pacific region में Australia, Japan, how they should react for this? This is what we have to think.
Colin Hoover, she is one of the best sellers. She has sold over 20 million books in 2022. One of the amazing self-published writers, and she has changed the rules of the game. और इनके जो she's writing on ghost, she's writing on psychology, she's writing on romance, she's writing on domestic violence, she's writing on homelessness. But then she is the number one right now, and she says that readers are controlling what is selling right now. But I'm not the one of the best writers. So Colin Hoover is a phenomena. We must also become like that. Moving forward to the next newspaper so that we can pick up and understand other ideas. So let's see that we have discussed about the RBI's goal and RBI's demand and RBI's role with respect to RBI's role with respect to ई रूपी. तो अब हम बात करते हैं कि ई रूपी वाकई चाहिए कि नहीं चाहिए. कॉन्सेप्ट नोट आया, हमने बात की, कॉन्सेप्ट नोट आया, उसके बाद जो है जस्टिफाई किया कि ई रूपी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. तो रीजनेबल असेसमेंट है कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है नई रूपी लाने का. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? द करंट स्टेट ऑफ मॉनेटरी फाइनेंशियल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप इंडिया का भी समझेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो चाहिए कि नहीं चाहिए. अब डिजिटल पेमेंट्स आर बेस्ड ऑन वर्चुअल मनी which is created by commercial banks. So this infrastructure is ये हमारे पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है. इंडिया इज ए पायनर इन डेवलपिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स. ओके, दैट इज क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हमारे पास है यूपीआई, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो इनेबल कर देता है इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन टू बैंक्स. कोई भी मोबाइल डिवाइस लो, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, कुछ भी करो, पेटीएम whatever it is you want to do, ये हो गया. तो रैपिड डिजिटाइजेशन हो गया. यूज ऑफ कैश फिर भी कम नहीं हुआ. एंड इवन डिमांड फॉर कैश इवन गो अप जैसे ही आपका पेंडेमिक खत्म हुआ है. तो इसीलिए इवन इफ सीबीडीसी भी हो जाएगा, ई रूपी भी आ जाएगा लीगल टेंडर में, तो वो सेकेंडरी रोल प्ले करेगा कैश के मुकाबले. इसीलिए किसी भी तरह का इंट्रोड्यूस करने से पहले सोच लेना चाहिए कि भाई तीन तरीके के हेड्स बन सकते हैं. क्या इफेक्ट होगा मॉनेटरी फाइनेंशियल सिस्टम पे, क्या इफेक्ट होगा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्या इफेक्ट होगा वेलफेयर पॉलिसीज पे. क्योंकि ई रूपी विल मेक मॉनेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट, फाइनेंशियल सिस्टम मोर स्टेबल. वो इट विल बी रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फिजिकल कैश मैनेजमेंट. लेकिन फिजिकल कैश मैनेजमेंट का कॉस्ट तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो है ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं. तो सीबीडीसी इस कॉस्ट को कम लेके आएगा, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएंगी. और उसके बाद ई रूपी विल बी हेल्पफुल इन पुशिंग टुवर्ड्स मोर डिजिटाइजेशन. पर कैश तो यहाँ पे हमारे यहाँ स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन में यूज होता ही है. दिस ट्रांजेक्शन में भी रिडायरेक्टेड टुवर्ड्स ई रूपी. अगर आप एनोनिमिटी दोगे तो होंगी, नहीं तो वो भी नहीं होंगी. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है विल बी इनहैंस्ड एज द ई रूपी विल बी प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव टू क्रिप्टो करेंसी. लेकिन पब्लिक को एक जो है एक रिस्क फ्री और वर्चुअल करेंसी मिलेगी, और उन्हें जो है वॉलेटिलिटी से, प्राइवेट वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे. तो लेकिन पॉइंट ये है कि नोट ये कहता है कि ई रूपी विल प्रोवाइड बेटर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टू वेज. तो कौन कौन से टू वेज है? फर्स्ट, इट विल हैव डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एन एडिशनल चैनल. और दूसरी बात ये वो रेजिलियंस बढ़ाएगा बाय प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज इवन आउटसाइड द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. जो मैंने बात की थी कि भाई एक टोकन सिस्टम होगा, एक रिटेल के लिए, एक होलसेल के लिए. सेकंड, इंटरनेशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी फास्टर हो जाएंगे, लेस कॉस्टली हो जाएगी. इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज इन इंडिया. तो कॉस्ट जो होंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की वो कम हो जाएंगी. इट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस. और उसके लिए जो है इंटरनेशनल डायमेंशन हमें सीबीडीसी के डिजाइन में लेना पड़ेगा. दूसरा, इट विल इंक्रीज द वेलफेयर, टारगेटेड वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड भी इसके उसमें आ जाएंगे. ऑफलाइन फंक्शनबिलिटी ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा. वो जो है इंटरनेट अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप ऐसा कर पाओगे. सो दिस विल डेफिनेटली फैसिलिटेट द क्रेडिट. तो लेकिन आर्गुमेंट्स ये हैं कि भाई इन सारी बातों को जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितना ज्यादा है. अगर हम उसका लिमिटेड रोल मान भी लें लीगल टेंडर के तौर पे, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तौर पे हम देखें तो इतना स्ट्रांग नहीं है. क्योंकि जब तक उसका सब्सटेंशियल यूज नहीं होगा रिटेल फॉर्म में, तब तक आपका कैश मैनेजमेंट का कॉस्ट कम नहीं जाएगा. क्योंकि डिजिटाइजेशन तो आप प्रमोट करोगे, लेकिन सब्सटीट्यूटिंग प्राइवेट मनी इज नॉट अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट आइडिया ओवर हियर. दूसरा, स्ट्रॉन्गर ग्राउंड के अंदर हम बात करें तो ई रूपी जो है पेमेंट देके आप इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट में मोर इफेक्टिव होंगे. डोमेस्टिक स्पेस में तो आप यूपीआई कॉम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा. इंटरनेशनल में उसका लिमिटेड यूज होगा क्योंकि वो बैंक ही यूज करेंगे. तो
रीजनेबल गोल हो सकता है, लिमिटेड यूज हो सकता है, और रिटेल सीबीडीएस भी जब भी टारगेटेड ऑडियंस की तरफ काम कर सकता है, लेकिन दीज आर्गुमेंट्स सपोर्ट करती हैं कि हम ई रूपी की तरफ जाएं। लेकिन ये बहुत ही कंपेलिंग केस नहीं है फिलहाल कि भाई हाँ आपने कर दिया और वो बहुत ही वाकई जरूरत भी हो जाएगा, क्योंकि सीबीडीसी के अल्टरनेटिव्स भी हैं। क्योंकि देर आर अल्टरनेटिव, जो हम अगर ई रूपी की बात करें उसके अल्टरनेटिव ऑलरेडी हैं। जैसे कि मैसिव पुश अगर चाइना की तरफ से आप देखें तो वो डिजिटल युआन बना रहा है, नॉट ओनली एज ए डोमेस्टिक करेंसी बट ऑल्सो फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विद देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर कंट्रीज। जैसे डिजिटल युआन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ग्लोबल करेंसी में, वो जो है इंडिया में भी आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद पॉसिबिलिटी हो जाएगी डॉलराइजेशन टाइप प्रॉब्लम, जैसे अब डॉलर का है वैसे ही आपका युआन का हो जाएगा, और ग्रेव सिक्योरिटी आपके रिस्क भी होंगे, क्योंकि इंडिया का रिलेशनशिप चाइना से आपको पता ही है। तो इन इश्यूज से डील करने के लिए आप ग्लोबल प्रोटोकॉल्स को यूज कीजिए, आप क्रॉस बॉर्डर यूज की सोचिए सीबीडीसी की, सीबीडीसीएस का, और उसके बाद आप डेवलपमेंट जब उसका करते हैं तो उसमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखिए, और उसकी क्रेडिबल वर्किंग को भी ध्यान रखिए, क्योंकि अडॉप्शन ऑफ ई रूपी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि उसको कब किया जाए, उसको और उसको कैसे किया जाए। क्वेश्चन ये नहीं है कि नहीं किया जाए, उसको करा जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो हमने मुद्दे उठाए इंडिया का कैश मैनेजमेंट के, यूपीआई के, रेमिटेंसेस के, और इवन अभी हमने जो युआन की बात की, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। उसकी जो है उसके बिना हमारा काम होना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाट वी कैन से। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक here, let's take up the another one. Please do make your own notes, as I am again requesting you. Please do go for your own understanding, as I again requesting you. Do visit the video again so that you can understand it better, so that you can pick up the best ideas, and therefore you will be able to do it better. So one article that I'm picking up here is with respect to the Times of India. In Times of India, there is an article which talks about what happened in what happened in बेंगलुरु फ्लडिंग। तो बेंगलुरु फ्लडिंग हमें याद है, हम जो है इलीट जो ग्रुप है उसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। आप बात करेंगे आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, एनुअल इनकम के हिसाब से जो है बहुत उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। टैक्स जीडीपी रेशियो तो सिर्फ 11% के आसपास है। तो आप देख लीजिए कि ब्रॉडबैंड, स्मार्टफोन, यूपीआई, हमने इतनी प्रोग्रेस तो कर ली, लेकिन फिजिकल एक्सेस जो मोबिलिटी की है, हाउसिंग की, एनर्जी की, उसमें हम कहाँ पहुंचे हैं? क्या सबके पास है? नहीं है। तो अगर आप अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल, आप भी अपने आंसर्स में ऐसे में आप ऐसे कोट्स को ला सकते हैं कि अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल जो है, अगर वो पैसा दें, अगर वो पैसा डालें, तो उसके बाद जो है हो सकता है कि समाज का भला हो जाए। हम अगर सिविल सोसाइटी की मदद करें, हम यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करें, हम डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स और सर्विसेज में मदद करें, तो कुछ हो सकता है। 42% ऑफ मुंबई लिव्स इन स्लम्स, तो बेंगलुरु भी मुंबई जैसा ही हो जाएगा। नीति आयोग स्टेट द 65% of 8 around 8,000 urban settlement do not have even a master plans. India has a one civil servant for 24,000 people. यूके में एक सिविल सर्वेंट इज देयर फॉर 131 पीपल। इंडिया में 24,000 लोगों के लिए एक सिविल सर्वेंट है। आप सोचिए फिर क्या रोल है यहाँ पर। तो अल्ट्रा जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, जिनका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, उनको चाहिए कि वो जो है इस काम को करें, कि इकोलॉजिकल प्रूडेंस को सोचें, वो सोचें कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। देन आई थिंक देयर विल बी ए सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, एंड देयर विल बी ए ग्रोथ ऑल्सो, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर अल्टीमेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, we're going to next point, and so that we can pick up economics, I have already shared with you. So when we talk about understanding in terms of economics, strong dollar, हम पहले भी बात करते हैं डॉलर अगेंस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ अदर करेंसीज, तो उससे क्या होता है, उससे आ जाता है आपका वाइडर करंट अकाउंट डेफिसिट, वाइडर सीएडी। वाइडर करंट अकाउंट डेफिसिट जब आपका आता है तो उससे होता है दिक्कत, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा, आपका एक हिंदी भाषा में कहा जाए, सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपका बोझ बढ़ता जाएगा, आपका उधार बढ़ता जाएगा। सो द क्वेश्चन इज दैट जो बैलेंस शीट्स है लार्ज सेंट्रल बैंक्स की, वो एक्सपैंड नहीं होनी चाहिए ट्विन डेफिसिट्स के कारण। फिस्कल कंसोलिडेशन इज द वे अहेड। फिस्कल कंसोलिडेशन, तो फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग टर्म में आपके इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेगी, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल रिस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन इंटरेस्ट रेट शॉक को अगर आपको रोकना है तो फिजिकल कंसोलिडेशन की बात किसने की? 15th फाइनेंस कमीशन ने फिजिकल कंसोलिडेशन की बात की और उन्होंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक असेसमेंट के अंदर इसको लाना चाहिए। उन्होंने जीएफडी और जीडीपी रेशियो की बात की कि भाई इतना होना चाहिए। गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि वो जीएफडी यानी ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट को कम करेगी 4.5%, 4.5% से बाई 25-26। गवर्नमेंट ने रिट्रीट किया इस टारगेट के लिए, लेकिन टारगेट जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से चल रहा है वर्स्ट केस सिनेरियो। सो अभी हो सकता है उसको वो रिकवर ना कर पाए। 15th फाइनेंस कमीशन क्या उसका रोल है, क्यों उसको बनाया गया, क्या होना चाहिए, ये भी हमें देखना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस आर इवॉल्विंग बेटर देन एंटिसिपेटेड। तो क्या है की मैट्रिक? की मैट्रिक है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, क्या कितनी थी और उसको प्रोजेक्ट कितना किया गया था फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और ऊपर से हमने क्या उसको पार कर लिया। सो गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी सिनेरियो में बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टेट ओन्ड बैंक्स को भी हमने प्राइवेटाइज किया, लेकिन reforms must be there, political consensus must be there, so that you can say that we can move towards our goal of 5 trillion economy. 15th फाइनेंस कमीशन ने बेस केस दिया था जीएफडी जीडीपी का 5% फॉर 23-24। डिफिकल्ट तो लगता है, लेकिन गवर्नमेंट इज मेकिंग इट ए सिंसियर एफर्ट टू ब्रिंग डाउन इट टू 5.5%। तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि यूरो में पहले कभी हुआ था। तो गवर्नमेंट का जनरल डेफिसिट है वो तो बढ़ा हुआ था, वो थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, बाकी पोस्ट पैंडेमिक जो इश्यूज हैं और वो प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज बट इंडिया इज मूविंग अप इन दैट। ये बताने का मेरा पर्पस क्या है, इंडिया इज मूविंग इन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द होल स्टोरी की हो कैसे रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन करना है हमें एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को और ओपन अकाउंट को, ताकि हम जो है रियल तरीके से रियल बेसिस के ऊपर हम अपनी इकोनॉमी को हैंडल करें। क्योंकि एक्सचेंज रेट कैन बी मैनेज्ड बट नॉट पैक्ड। उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन आप उसको ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि भाई इतना ही होगा बस। मैनेज कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लीवर बहुत सारे जो हमने पहले भी चर्चा की है, एग्रीकल्चर है, कमोडिटीज है एंड सो ऑन, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। तो एक बार फाइनेंशियल कंडीशन जब टाइट हो जाएंगी बहुत ज्यादा, तो फिर जो है थोड़े थोड़ा दिक्कत आना मार्केट के लिए शुरू हो जाता है। दैट इज वाई इन्वेस्टर रिस्क एवर्जन जो है नहीं होना चाहिए। रिस्क इन्वेस्टर्स को लेने के लिए हमें ऐसी क्रिएशन करनी चाहिए कि वो आए और रिस्क लें। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, दोनों के अंदर से ऐसा मैसेज जाना चाहिए, द साइकिल शुड बी लाइक दैट वी आर गोइंग टू बी पॉजिटिव मार्केट फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाउस प्राइस बबल्स जो है इट में बर्स्ट इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि करेक्शंस हो रही हैं यूएस में, चाइना में, यूके में, कोरिया में, तो इंडिया में भी ऐसा होगा। तो एंड है जो फ्री मनी का, फ्री मनी जैसे यूके में बात होती है, फ्री मनी यानी कि जैसे आप किसी चीज के लिए दे देते हो, तो उसका भी समय कम होता जा रहा है। वॉलेटिलिटी एक्सचेंज रेट की है, लेकिन इंडिया उसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है। इवन जापान, यूएस डॉलर, आप उसको देखेंगे तो वो भी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, बट इंडिया इज मूविंग अहेड। सो डॉलर स्ट्रेंथ is an important, I have already spoken about it, कि डॉलर की जो वॉलेटिलिटी है दैट इज इम्पैक्टिंग द रूपी रादर देन रूपी इम्पैक्टिंग, कि रूपी को किसी और चीज का इम्पैक्ट, डॉलर इज मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड रूपी इज एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू द डॉलर। सो इसलिए आरबीआई शुड डू वेल टू इनकरेज कॉर्पोरेट्स टू मैनेज गुड हेज रेशियो। उसके बाद जो है बोरोइंग हो, बट द बोरोइंग मस्ट बी फॉर प्रूडेंट मेजर्स। उसके बाद ओपन इकोनॉमी कंसल्टेशंस होनी चाहिए, रेट हाइक्स होने चाहिए, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना तो एक दिन में बनती है ना एक बार में जाती है। तो हमें इस एंगल से इसको देखना पड़ेगा, और ये देखने से ही हमें समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन विच डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन इज अल्टीमेटली very very important. Now let's see an important news item with respect to the Hindu. Building resilient mineral supply chains. Huh? Mineral supply chains. So Prime Minister has been talking about Atmanirbharta in energy, focusing clean energy technologies. लेकिन पंगा क्या है, clean energy technologies will also have an idea with respect to price and availability of oil and gas. यूक्रेन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहेंगे, सो दिस फ्रेजिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन, fragility. So that is a main problem, that you cannot reduce dependence on fossil fuels. For India, क्या important बात है? Imported inflationary pressure. Imported inflationary pressure. More and more oil and gas is being imported, and more volatility is there, and more price fluctuation is there, and more problems are there for India. So उससे क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे फर्क आता है. सो इम्पोर्ट डिपेंडेंट 85% हम अपने ऑयल और गैस के लिए, ऑयल के लिए, और हाफ ऑफ इट्स इज गैस नीड्स. देयरफॉर की
मिनरल्स के जो एक्सेस है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स पे पीटी पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग दैट इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर द मेंस एंड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सो प्लीज डू गिव फोकस। सो बिल्डिंग रेजिलिएंट एंड इंडिजिनस सप्लाई चेन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये चैलेंजिंग है। पहली बात क्यों कि रिजर्व जो है ऐसे रीजन्स में जो जियो पोलिटिकली सेंसिटिव हैं और वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से एकदम नंबर 0 है उस तरीके से। सेकंड, जो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड आपके जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स के हाथ में है। तो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के नाम बोलते ही, जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर नाम बोलते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? आपके माइंड में चाइना आना चाहिए। जैसे कोबाल्ट के मायना में, कोबाल्ट के केस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो होती है उसमें डायरेक्ट इक्विटी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। दूसरा, फ्यूचर जो है माइन प्रोडक्शंस का वो ऑफ टेक एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी कि मैंने आपको 3-4 पॉइंट बोले, आपको 3-4 वर्ड्स की लिखने हैं। यानी कि एडवांस बायर्स ऑलरेडी उसकी डिमांड को कैटर करने को रेडी रहते हैं। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसा करके आपको सोचना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सोर्सिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो द इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैब्लिश किया, क्या? खनिज विदेश निगम लिमिटेड, काबिल। मैंडेट क्या है? सिक्योर मिनरल सप्लाई फॉर डोमेस्टिक मार्केट। तो इसकी स्टडी की गई तो पॉलिसी मेकर्स को कुछ पॉइंट्स सोचने चाहिए। क्या पॉइंट्स होने चाहिए? पहली बात, आप फिगर आउट कीजिए मिनरल रिक्वायरमेंट क्या है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। यानी कि एक टास्क फोर्स मस्ट बी देयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हैवी ड्यूटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, सबको ले लीजिए और एक 5 ईयर रोड मैप बनाइए विद ए क्लियर टारगेट। फिर उसके बाद इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग आप क्लीन एनर्जी सेक्टर में देखिए कितनी हो सकती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को उससे कैसे जोड़ा जा सकता है, उसका एसेस कीजिए कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास कितनी और कैसे हम कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता चलेगा कि जो मिनरल्स हैं वो जो हम इंपोर्ट करते हैं या मिनरल्स को हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं वो कैसे हो सकता है। सेकेंड, गवर्नमेंट मस्ट हैव स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस जहां पे जरूरी है, यानी कोलैबोरेट करे जहां पे जरूरी है, टू बूस्ट और टू बोल्स्टर द मार्केट इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज जो ग्लोबल सप्लाई साइड डेवलपमेंट है। यानी कि कहाँ से क्या चीज, जैसे अब पेंडेमिक से हमने सीखा कि चिप, जो जो चिप है या फिर इवन वैक्सीन, इफ आई टेक एग्जांपल, इफ आई रिप्लेस द एग्जांपल ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स विद वैक्सीन्स, सो इंडिया वाज एबल टू डू सो बिकॉज इंडिया वाज इन द सेंटर पोजीशन, अदरवाइज क्या हाल होता। तो इसीलिए पिक्चर क्लियर होनी चाहिए इंडिया की, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट भी हमें पता होने चाहिए। यही हमारी पॉवर्टी एलिवेशन में कल को लॉन्ग टर्म में फायदा भी करेगा। तो एडिक्वेट विजिबिलिटी होगी, क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया जाएगा एंड देन द थिंग्स विल बी मूविंग ऑन। और उसके बाद अगर मान लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो फिर भी जो काबिल है इट शुड साइन ऑफ एंड इट शुड साइन एग्रीमेंट्स विद द ग्लोबल मिनरल सप्लायर्स ताकि फ्यूचर प्रोडक्शन हाथ में आ जाए। It could aggregate a reliable supply of minerals for domestic requirements और साइन बैक टू बैक सेल्स एग्रीमेंट करे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ। तो इतना लार्ज स्केल जब सेंट्रलाइज नेशनल प्रोक्योरमेंट होगा तो प्रेफरेंशियल टर्म्स में हो ही सकता है। इसके बाद एक और बात भी है, गवर्नमेंट शुड जॉइंटली इन्वेस्ट इन माइनिंग एसेट्स विद जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यानी माइनिंग सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट अपने आप को कोलैबोरेट करे और आगे बढ़ जाए। लीवरेज होनी चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप की ताकि रिस्क थोड़े से कम हो जाए। इन्वेस्टमेंट करिए आप, कैसे करोगे आप? सोवरेन एंटिटीज के साथ, यानी कि आपका पैसा डूबे भी ना और आपका अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से आपने पैसा लगाया तो वो लौट के भी आ जाए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया कन्वर्सेशंस को पार्टनर कंट्रीज के साथ। इसीलिए जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल क्वाड के साथ ये बातें कर रहा है, हाउ टू एस्टैब्लिश ए रेजिलिएंट क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन। उसके बाद जो है सपोर्ट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कीजिए डोमेस्टिकली अवेलेबल मटेरियल्स के लिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सच सोडियम आयन बैटरी हो गई, वो जो है रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है सोडियम आयन बैटरीज की। ठीक है। दूसरा उसके बाद जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो अभी हमने बात की बैटरीज में, वो टेक्नोलॉजिकली जो है इंडिया के लिए एक ऐसा पैराडॉक्स बन सकता है, इंडिया के लिए ऐसा प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि कैसे करे, लोकल रॉ मटेरियल्स के ऊपर रिलाई करने वाली चीजों पे करें, ना कि आप बाहर से जो चीजें आ रहे हैं उसके लिए आप कुछ कर दें। तो कोर डेवलपमेंट कीजिए ना, ऐसी टेक्नोलॉजीज का कोर डेवलपमेंट यहाँ पर भी कीजिए और बाहर से भी आप लीजिए। और अर्बन माइनिंग जिसे हम कहते हैं, पॉलिसीज ऑन अर्बन माइनिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल, मेंस के अंदर क्वेश्चन 100% आ सकता है, पीटी के अंदर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, रिसाइकलिंग पे आ चुके हैं, उनके रूल्स के ऊपर आ चुके हैं, दोबारा भी आएंगे, कुछ नया नहीं आने वाला। तो यूक्रेन हो गया या बाकी ये बातें हो गई, ये तो अभी की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देयर इज सो मच मोर फॉर इंडिया टू लर्न। दूसरी हम बात करते हैं बिफोर वी वाइंड अप कि इंडिया के जो प्रिजन्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं।
मेंस के अगर एंगल से आप देखोगे, पीटी में तो खैर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जगह क्वेश्चन आता ही आता है, साथ में जुडिशियल कस्टडी का क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन आप देखिए नंबर ऑफ प्रिजनर्स 5.6 लाख अगर आप कहें, ओके, इन लैक्स, देन यू आर सीइंग प्रिजनर कैपेसिटी है 4.4 लाख। आप खुद सोचिए, अब आप 2021 में बार सीधा सीधा चार्ट। तो सेलेक्ट यूनियन टेरिटरीज, जब स्टेट की हम बात करते हैं, दिल्ली हैज द हाईएस्ट इंक्रीज ऑक्यूपेंसी रेट 122%। उसके बाद फॉरेन इनमेट्स मैक्सिमम, हमने पहले भी बात की थी, दे आर लॉज्ड इन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेशी हैं। फिर अगर आप उसके अलावा बात करते हैं तो आप देखिए कि बांग्लादेशी अंडर ट्रायल्स और परसेंटेज ऑफ फॉरेन इनमेट्स। तो आपको देखना है कि कैसे इंडिया इस चीज को कैसे मिटिगेट कर सकता है। क्या सिर्फ वैकेंसीज से ठीक हो जाएगा? क्या सिर्फ जो है आप ऐसा कर पाएंगे जो जो है आप अगर सोचते हैं कि भाई that I should be able to create such a system, such a holistic preventive system, जहां पर जो है लोगों को हम इस तरीके से सिटीजन्स को गवर्नेंस मॉडल के हिसाब से हम ऐसे उनको गाइड और एनलाइटन कर सकें कि क्राइम अपने आप ही कम हो जाए। तो सोचने वाली बात है कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, दैट इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो फाइनली one last point I'm taking up with respect to CAD, again economy is a very very crucial point। इकोनॉमी को सिर्फ इकोनॉमी की तरह मत देखिए, इकोनॉमी को देखिए आप सारे पर्सपेक्टिव से, मेंस के भी, प्रीलिम्स के भी, और अदरवाइज ऑल्सो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि अगर CAD ब्रीच करता है 3% जो रेड लाइन है तो क्या होगा? तो टू मेजर फॉरेक्स क्राइसिस जो मोस्ट ऑर्डिनरी इंडियन वुड रिमेंबर, एक तो 1991 का बीओपी पेमेंट सबको पता है, दूसरा जो है आपका 2013 का जो है फेडरल रिजर्व का टेपर टेंट्रम, यानी कि उस टाइम जो हुआ था। उनमें एक कॉमन फीचर था कि इंडिया का CAD 3% अब ब्रीच कर गया। 3% ब्रीच का मतलब है टोटल GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 3% ज्यादा हो गया, अभी भी ज्यादा होने वाला है। तो वो जो है पहुंच गया 23.9 बिलियन, फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, 2.8% है GDP का, जितना जान लीजिए। तो अब डेफिसिट होगा, डेफिसिट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डेफिसिट जो है फाइनेंस होता है सरप्लस कैपिटल अकाउंट से। तो जैसे ही कैपिटल इनफ्लो इंडिया में आता है डायरेक्ट या फिर मार्केट इन्वेस्टमेंट से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, या नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट से, वो एवरेज है 3.1% ऑफ द GDP इन द पूरे डिकेड की अगर हम बात करें। तो ये लेवल जो है एक सेफ कैप है CAD पे। अब ये कैप ब्रीच हो जाएगी, क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी जो है 1/4 है इंडिया का टोटल इंपोर्ट का, लेकिन प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट जब 20% बढ़ जाएगा और रुपी गिर जाएगा, तो इसका मतलब है आपको माल, तो आपको ज्यादा लेने के लिए, माल अगर आप ज्यादा ले रहे हैं या माल उतना भी ले रहे हैं तो पैसा तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो अनाउंसमेंट ऑफ सप्लाई कट्स बाय द प्रोड्यूसर्स, अब $100 से पर बैरल अगेन अगर ये बढ़ जाएगा तो उसके बाद CAD फिर से बढ़ जाएगा। तो इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि अगर CAD बढ़ जाता है तो उससे होगा क्या? क्योंकि इसका दूसरा कंपोनेंट ये है कि भाई अगर जो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, तो कैपिटल अकाउंट का मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अब जून तक तो नेट आउटफ्लो हो रहा था, अब जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बढ़े हुए हैं, सेंट्रल बैंक भी अपने रेट को टाइट कर रहे हैं, तो FPI फ्लो जो है वॉलेटाइल है, शिफ्ट है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जहां उनको ज्यादा रिटर्न मिले। इंडिया को सफर हुआ है क्योंकि जो सारा का सारा पैसा उन्होंने इमर्जिंग मार्केट से एक साथ निकाल लिया और उनको जो है ऐसी जगह लगाया जहां रिस्क उन्हें लगता है कि नहीं है। तो इंडियन एसेट्स डेट में भी और इक्विटी में भी वो इस तरीके से डिसएडवांटेज को फेस करते हैं। तो रेट गैप जो है वो तो नैरो हुआ है, लेकिन इंडिया जो इंडिया जो रुपी वीक हुआ उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स भी हमारे पास कम आए हैं। तो नेट क्या हुआ? नेट पुल आउट हो रहा है FPI फ्लोज का, तो उससे डॉलर का जो है इनफ्लो कम हो रहा है CAD को फाइनेंस करने के लिए। इंडिया को और सोर्सेज चाहिए, जैसे अब इंडिया को क्या चाहिए? FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जो इंडिया ने नोट किया था, नहीं तो उसका फॉरेक्स रिजर्व और कम होता चला जाएगा, ये भी एक पंगा है। अब अगर CAD ब्रीच कर गया भाई, जैसा मैंने कहा, एक बार 1991 में किया था कुवैत के टाइम पे, इराक के जब इराक इन्वेजन हुआ था कुवैत का, तो इराक जब कुवैत का हुआ था तो इंडिया का क्रूड बिल इतना बढ़ गया था कि फॉरेन रिजर्व उसको संभाल ही नहीं पाए थे। तो कंट्री को फंडिंग लेनी पड़ी थी IMF से, डिवैल्यू करना पड़ा था रुपये को, और ऊपर से फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़े थे। ये हुआ। उसके बाद अगर आप 2011-13 की बात करें तब भी ऐसे ही हुआ था, वेस्ट एशिया में $100 से पर बैरल ऊपर चला गया, 4% प्लस CAD ब्रीच हो गया था। और उसके बाद जो एक्सटर्नल अफेयर, हमारी एक्सटर्नल पोजीशन इतनी फ्रेजाइल थी कि रुपी जो है 20% 4 महीने में नीचे चला गया था। तो इसलिए CAD एक रेड फ्लैग है। CAD अगर मान लो बढ़ता है तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ हो रहा है, एक्सचेंज रेट वीक, और उसके बाद जो है मार्केट वॉलेटिलिटी हाई,
और कोई भी डेवलपमेंट जो 3% को पुश करेगा तो हमें पंगा होगा ही होगा। और ये चीज किससे जुड़ी हुई है? एक्सटर्नल रिस्क से जुड़ी हुई है। इंडिया ऐसी इकॉनमी है जो 7% के आसपास इस फिस्कल में भी जा रही है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, फॉरेक्स भी इसके पास रिजर्व बहुत अच्छा है, नेशनल डेट भी इसका रुपए में ही है। इसीलिए जो है पैनिक होना लाजमी नहीं है। तो राइजिंग सीएडी जो है एक प्रिडिक्टर नहीं है एक्सटर्नल क्राइसिस का, लेकिन ये इंडिकेटर है कि रिस्क बढ़ गया है। वो मिटिगेट हो सकता है अगर हम अपने डेफिसिट को अगर हम थोड़ा कम करते हैं। पहले वाला पोजीशन तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डेफिसिट कम करना तो हमारे हाथ में है। फंडामेंटल स्ट्रांग रखे, इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ करे, पॉपुलिस्ट चीजों की तरफ थोड़ा कम, और अपना कोर इन्वेस्टमेंट जैसे अभी हमने कहा था हाई फंडिंग, जो हाई फंडिंग बोल रहा हूँ, हाई इन्वेस्टमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, उनको वो बढ़ा के रखे। अगर ये चीजें करेंगे तो सीएडी का प्रॉब्लम भी हम हाथों हाथ सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज वर कपल ऑफ आइडियाज व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल्सो दिस इज जस्ट नॉट इन वीडियो, दिस इज अ लेक्चर which is going to brace up your fundamentals for success. Thank you very much. All the best, and get back for any kind of issues, any comments and feedback, because this will really help to make it more smarter to bring success to your doorstep. Thank you.